हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज द प्रेजेंट टेंस। सो इस चैप्टर में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। So before starting this chapter, as you can see, the starter activity is given to you. Write the time of the action being performed in brackets. आपको टाइम लिखना है कि कभी एक्शन परफॉर्म किया गया है ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन आपको यहाँ पर दिया है प्लेइंग, तो आपको बताना है कि ये प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फिर फ्यूचर में किया है। नेक्स्ट है स्किपिंग, फिर है रनिंग। ओके, now student, let's start the chapter. So the first topic is tense. A tense is a verb form that is used to show the time of action or state expressed by the verb. Tense जो है एक verb form है जिसको हम use करते हैं, जो कि दिखाता है time of the action, ठीक है, और state express करता है ये by the verb. There are three basic tense. यहाँ पर three basic tenses आपको दिए गए हैं: present, past and future. Present, past and future tense. Each tense has four forms. हर एक tense के four forms हैं, जैसे कि फर्स्ट है सिंपल, देन प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस, देन इट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज द प्रेजेंट टेंस. We use the present tense to talk about the action that take place in the present or at the time of speaking. हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं जब हम उन एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट में हो रहा है, टेक प्लेस कर रहा है, और जब हम बोल रहे हैं तब वो हो रहा है। The present tense has four forms. Present tense के four forms हैं. First one is simple present tense, then present continuous tense, then present perfect tense, and then present perfect continuous tense. Okay? So चलिए जानते हैं हर एक टेंस के बारे में, हर एक प्रेजेंट टेंस के बारे में. So the first one is simple present tense. फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पर आपको फॉर्मेशन दे रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस दिए हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं. इंटेरोगेटिव भी दे रखे हैं प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी दिए है, ठीक है. जैसे कि फर्स्ट वन है आई रन, देन नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट रन. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, डू आई रन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नॉट आ जाएगा, डू आई नॉट रन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वी रन, वी डू नॉट रन. Do we run? Do we not run? Next one you run. ये singular form है, ठीक है. Next thing you do not run. Do you run? And then do you not run? Next one you run. This is plural form. You do not run. Then do you run? Then in the negative interrogative it is do you not run? Next one he slash she slash it runs. Any third person in the singular form. Okay. He slash she slash it does not run. Then in the interrogative, does he slash she slash it run? Then negative interrogative, does he slash she slash it run? Question mark. Next one, they run. Any third person plural form. Then they do not run. Then उसके बाद interrogative form में do they run? In the negative interrogative it is do they not run? Now student, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको टेबल दिया गया है. First one is affirmative sentences. The affirmative sentence is formed by using, affirmative sentence form होता है जब हम use करते हैं, ठीक है, the positive type of words, okay, but with he, she, it and other third person singular subject, we add an s or es to the root form, ठीक है. अब जैसे he, she, it होता है तो उनके साथ verb में हम क्या करते हैं, verb में s या फिर es लगा देते हैं, ठीक है, इसके root form के साथ. okay, for example I run, you run, but he or she में और it में क्या हो जाएगा, runs. okay. Next thing is negative sentences. The negative sentences is formed by using don't, doesn't, okay, यानी कि not लग जाएगा. For example, I do not run, we do not run, he, she, it does not run, ठीक है. मतलब जो singular form है ना, he, she, it, उनके साथ does होगा, और जो plural form है या फिर जो I है उनके साथ हम do लगाएंगे, ठीक है. Next thing is interrogative sentences. The interrogative sentences is formed by using do slash does before the subject, subject से पहले, ठीक है. जैसे कि for example, do I run, okay, do you run, does he, she और it run, okay. तो आप देख सकते हो, do हमने जो plural form है उनके साथ यूज किया है, I के साथ यूज किया, और does हमने singular form के साथ यूज किया है, he, she, it के साथ, ठीक है.
Now the next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences is formed by using do/does before the subject, subject से पहले, and not after the subject, और not after the subject लगेगा. जैसे कि for example, do I not run? Okay, do you not run? Does he, she, it not run? Okay. Now the next thing is uses of simple present tense. अब simple present tense कहाँ पर use होता है? The simple present tense is used to express habitual action. Habitual action को express करने के लिए use करते हैं. जैसे कि for example, आकाश goes for morning walk, तो वो हमेशा जाता है, तो एक habitual हो गया. ठीक है. Next thing is to express permanent truth or facts. कुछ permanent truth और fact को express करने के लिए हम use करते हैं simple present tense को, जैसे कि the earth revolves around the sun, तो ये permanent truth और fact है. Next thing, to express the present moment, एक present moment को express करने के लिए हम use करते हैं, जैसे कि for example, mother is in the kitchen. ठीक है. Next one, to express natural qualities and professional activities. Natural qualities और professional activities को express करने के लिए हम use करते हैं. For example, lemon tastes sour. Okay. Next one, to express what is happening right before the speaker's eyes. ठीक है, मतलब क्या चीज हो रही है राइट बिफोर द स्पीकर आए, जो बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, विराट हिट्स द बॉल हार्ड, इट गोज वेरी फार एंड इट्स अ 6. ओके. नेक्स्ट थिंग, टू एक्सप्रेस द थिंग्स दैट आर प्लान फॉर द नियर फ्यूचर. आने वाले फ्यूचर के लिए जो प्लान किया है उस चीज को एक्सप्रेस करना. फॉर एग्जाम्पल, IPL स्टार्ट्स ऑन September 19. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. Now the next topic is present progressive tense. Formation of the present continuous tense. यहाँ पर आपको formation दे रखा है present continuous tense का. ठीक है, आप देख सकते हो affirmative and the negative, interrogative and the negative interrogative. ठीक है, जैसे कि I am running, तो negative में हो जाएगा ये I am not running. Interrogative में am I running. Negative interrogative में am I not running. Next one, we are running, we are not running. Are we running, are we not running. Okay, he, she, it is running. He, she, it is not running. Is he, she, it running? Or is he, she, it not running? Okay. So in this affirmative sentences, the affirmative form is formed with am, is, are. Am is are होगा उसमें, plus root form of the verb plus ing. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग. यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आर यूज किया गया है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया है. रीड है तो उसके साथ आईएनजी लगाया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. द नेगेटिव फॉर्म इज फॉर्म बाय पुटिंग नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगा है? नॉट लगाया है, जैसे कि वी आर नॉट रीडिंग. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. The interrogative is formed by placing the auxiliary before the subject. Subject से पहले auxiliary हम place कर रहे हैं, जैसे कि for example, are we reading? Okay. Now next is negative interrogative sentences. The negative interrogative is formed by placing the auxiliary verb before the subject. Subject से पहले auxiliary verb को place कर रहे हैं हम, and not before the main verb, और not को हम place करें before the main verb. Okay. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आर वी नॉट रीडिंग. ठीक है. नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मतलब उस एक्शन के बारे में जो हम बोल रहे हैं, तो वो एक्शन जो है तब भी परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. एक एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना जो कि प्रोग्रेस में है और वो कंटिन्यू हो रहा है कुछ टाइम पीरियड तक के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही इज लर्निंग भरतनाट्यम. ओके. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. एक एक्शन को एक्सप्रेस करना जो कि प्लान किया गया है कि वो टेक प्लेस करेगा नियर फ्यूचर में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल इज विजिटिंग अस टुमारो. ओके. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ अ परसिस्टेंट हैबिट. एक पर्सिस्टेंट हैबिट को लेकर डिसअप्रूवल शो करना. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर. नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
फर्स्ट थिंग यू कैन सी ओवर हेयर, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एफर्मेटिव है, इधर इधर नेगेटिव है, और इधर इंटेरोगेटिव आपको दिया और इधर नेगेटिव इंटेरोगेटिव दिया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो आई हैव ईटन, नेगेटिव में आई हैव नॉट ईटन, इंटेरोगेटिव में हैव आई ईटन, ओके, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैव आई नॉट ईटन। नेक्स्ट वन वी हैव ईटन, वी हैव नॉट ईटन, हैव वी ईटन, हैव वी नॉट ईटन, ओके। नेक्स्ट वन ही शी इट हैज ईटन, he she it has not eaten, he she it eaten. Next one, has he she it eaten, has he she it not eaten, okay. Now here you can see affirmative sentences. The affirmative sentences is formed with have has यहाँ पर put होगा plus the past participle. Has is used with the third person singular and singular noun. Has हम use करेंगे third person के साथ singular और singular noun. Next thing, have is used with the plural form and I, we, you and they. Have जो हम plural form के साथ use करेंगे और I के साथ, we के साथ, you के साथ और they के साथ. For example, I have done my duty. Okay. Next one, negative sentences. The negative sentence is formed by placing not after the have or has. नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है जब हम हैव या फिर हैज के बाद नॉट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, ओके. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म बाय प्लेसिंग हैव स्लैश हैज बिफोर द सब्जेक्ट. हैव और हैज को हम पहले रखते हैं सब्जेक्ट के, तभी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म करते हैं, जैसे कि हैव यू ओपन द डोर, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. So here the negative interrogative sentences are formed by putting have or has before the subject, subject से पहले, and not after it और not उसके बाद. जैसे कि has he not told the truth, okay. Now let's see uses of the present perfect tense. So the present perfect tense is used to express a recently completed action by placing it just before the main verb. जब हम एक्सप्रेस करते हैं एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को, ठीक है, बाय प्लेसिंग इट जस्ट बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब से पहले हम उसे प्लेस करते हैं, जैसे कि आई हैव जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन दैट वाज कंप्लीट बट हुज टाइम इज नॉट मेंशन. एक पास्ट एक्शन के बारे में एक्सप्रेस करना जो कंप्लीट हो गया पर उसका टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन टू दुबई. नाउ नेक्स्ट इज to describe an action which began in the past and is still continuing. मतलब एक एक्शन को डिस्क्राइब करना जो शुरू हुआ था पास्ट में और अभी भी वो चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल he has studied in this school for 6 years, okay. Now student, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. Now the fourth type is present perfect continuous one. So formation of the present perfect continuous आप यहाँ पर देख सकते हो affirmative, negative, interrogative, negative interrogative. I have been eating, I have not been eating, have I been eating, have I not been eating. तो आप देख सकते हो have का यूज है यहाँ पर. Then we have been eating, we have not been eating, have we not been eating, have we not been eating, okay. एक में have we been eating और have we not been eating, वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट थिंग he she it has been eating, he she it has not been eating, has he she it been eating, has he she it not been eating, okay. Now here you can see affirmative sentences. The affirmative is formed with have slash has plus present participle root form of the verb plus ing. So affirmative form होता है have has के साथ, उसमें present participle होता है, root form of the verb होता है और ing होता है. For example, I have been doing this work for 3 hours. तो I के साथ have लगेगा, been, और फिर वर्ब के साथ ing फॉर्म, ठीक है. अब उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंसेस. द नेगेटिव इज फॉर्म बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर द हैव स्लैश हैज एंड बिफोर बीन, ठीक है. तो नेगेटिव फॉर्म होता है जब हम नॉट को प्लेस करते हैं हैव और हैज के बाद, ठीक है, और बीन से पहले, जैसे कि आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. The interrogative is formed by putting have slash has before the subject. सब्जेक्ट से पहले हम पुट करते हैं have और has को, ठीक है. और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपको दिया है have I been doing this work since morning, okay. Now next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences is formed by using have has before the subject, सब्जेक्ट से पहले, and not before been, और not को हम यूज करेंगे before been.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग. Now let's see uses of the present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used for an action which began in the past, continued for some time and is still continuing. मतलब एक action जो शुरू हुआ था past में और वो continue हुआ कुछ time period के लिए, अभी भी वो continue चल रहा है. For example, Raj has been doing his homework for the last 2 hours. मतलब अभी भी कर रहा है. Next one, we have been watching TV for the last 3 hours. Next one, for an action. Next point is for an action which has been in progress for some time but has just finished or is still going on. मतलब एक एक्शन जो प्रोग्रेस में था कुछ टाइम पीरियड तक के लिए बट अभी अभी वो फिनिश हुआ है और वो अभी चल रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, महेश हैज बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours. नेक्स्ट वन, शी हैज बीन वॉशिंग द यूटेंसिल्स, सो दैट्स व्हाई हर हैंड्स आर वेट. ओके. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है और इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.